हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इसमें हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों के जो है परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का जो है विकास किस प्रकार हुआ, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, 8th हो, 10th हो, +1 हो, +2 हो, तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सभी बोर्डों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उनके टॉपिक में एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू इंटरनल फोर्स है तो ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। I have a most important chapter doing here evolution of the land form due to the internal force. There is a most important chapter and the most important topic arrive here, internal force. What do you mean to the here internal force here? The internal force here, the variety in the types of land form on the earth is the end of result of two types of force. The working as a stimulus as a continuously both inside and outside it is a surface. The force which is the originate from within the earth as a crust or inside the earth are called internal and the endogenetical force. The source of providing them there is energy or the internal heat. The chemical reaction taking place within the earth and the transfer of the rock materials on the earth as a surface by internal their external force. Not internal, there is a external force. There are rock materials on the earth surface by the external force. And the next here, the earth movement. What do you mean to the here earth movement? Through we are generally here a people using to fare as like a hard as a rock and as stable as the earth, but these phases are not true. Neither the earth is stable nor the rock of which is the crust is made are so hard. Since the origin of the earth, there has been a major change in the distribution of the continent and ocean, the land and the oceans. The earth has experienced a innumerable earth is a movement which have a both about vast change in the surface. The sum of their example of this movement are the submergence of forest in Mumbai is a horrible, and the Mahabalipuram's temple now standing on the sea, and the change in their ground level in the Rana of Kocha of India. The force working from the inside the earth in the turn case of movement in the crust. There is the most important here, the force working from inside the earth in the turn case of movement in it is a crust, and this movement is called is the earth movements. There is the most important, this movement are called earth movements. Since and this movements is a contain to arise from the moment of the actual structure of the earth is a crust. They are also called to the tectonic moment. Tectonic moment is also already have discussed the previous chapter. The word is a tectonic is derived from the Greek word tecton, which is mean to the builder, and the word is a true to it is a meaning because these are there are is a moment which are the constructionally is have and has been to responsible for the buildings of different types of land form.
The figure has shown the next our topic, but it is a quite evident that is a physiographic of the Indian was entirely different about a 60 million year ago. The vast chances sea is a excited in that is the area where to the Himalayan range and Indo is a Ganges plan exit. The Thames as a sea was gradually filled up there are sediments and the both there by a river from a surrounding regions. And later the sedimentary rocks formed in there is a beds of this sea is gradually emerged in form of the Himalaya in the north and Indo is a Ganges plant to it is a south. Here show the diagram of two. There is a 6 million year ago and the present configuration. There is the most important. The first here diagram is a 60 million year ago. The India Gangotris and there is the Indian draft and the Thames Seas and Angora. A present configuration here the Himalaya in India and the Indian colloids. There is the most important and difference for there is a diagram. The Malabar Plateau and the Deccan Traps of India is the Columbia and the Shank of River is the plateau of North America. The Canberra is a plateau of the Australia and Parana and there is a Patagonia plateau of South America were also formed by the solidifications of the molten lava which has escaped from to the earth as an entire to its surface at a different geologically time. And there is the most important the evidence of clearly show that is the surface of our earth the never is remain that the same as it is today and the neither it will be the same of future. Then here the present of most important fact here a moment causing by the internal and endogenical force and affecting the earth as a crust are known as the earth movement. You know that the earth movement, the moment is causing by internal and endogenical force affecting the earth as a crust are known as the earth movements. And the next year earth movement are also called is a tectonics movement as they help in buildings there are relief features on earth as a crust through the subsequently are stimulancy undergoing to the changes. There is a most important here point यहाँ पर जो हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक बलों की जो है परिणाम स्वरूप भू आकृति का जो विकास हुआ है। ये चैप्टर कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके सिलेबस में अगर ये जो है पॉइंट है। इसके अंतर्गत हमारा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो है आंतरिक बल। देखिए आंतरिक बल का क्या अर्थ होता है ये जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहेगा कि आंतरिक बल होती क्या है। पृथ्वी पर भू आकृति की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाले दो प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। यानी देखा जाए तो जो है आकृति यानी पृथ्वी के भू आकृति की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ साथ कार्य करने वाले दो प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम होता है। भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाली इन शक्तियों को जो है आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं। यानी आंतरिक या अंतर्जातीय बल कहते हैं और इन बलों की ऊर्जा के स्रोत के पृथ्वी की आंतरिक गर्मी तथा जो है पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा जो है शैल पदार्थों का हस्तांतरण होना एक स्वाभाविक बात है। तो कई मानने में जरूरी भी है कि इन बलों की ऊर्जा के स्रोत के रूप में पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा जो शैल पदार्थों का हस्तांतरण होना स्वाभाविक बात है। यदि बात हम करें यहाँ पर दूसरी पॉइंट की तो देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो दूसरी पॉइंट आपके समक्ष है वो है पृथ्वी की हलचलें। देखिए पृथ्वी में हलचलें होना स्वाभाविक बात है जिसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं जिसको अर्थक्वेक आप सामान्य रूप में कहते हो। लेकिन बात यहाँ अगर हम पृथ्वी की हलचलों की बात करें तो सामान्यतः हम लोगों को यह कहते हुए सुना है कि पृथ्वी जो है शैल की तरह ठोस है यानी काफ़ी जो है क्रस्टेड है तथा ये स्थिर है। लेकिन यह सत्य नहीं है। न तो पृथ्वी स्थिर है और न ही शैल जिसमें पृथ्वी की बाहरी परत बनी है उतनी ठोस है। पृथ्वी के जो है उत्पत्ति से लेकर आज तक जो है महाद्वीपों और महासागरों के जो स्थलीय और जलीय भावों के विवरण में भारी परिवर्तन होते हुए नजर आया है। यानी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। पृथ्वी पर असंख्य भू हलचलें हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वी में हलचलें होना एक स्वाभाविक बात है जिनके परिणाम स्वरूप इसके धरातल पर भारी परिवर्तन भी हुए हैं। यानी पृथ्वी पे हलचल होगी तो इसका मतलब है कि इसके धरातल में बहुत से परिवर्तन होंगे। ये तो आपको भी पता है। अगर मान लीजिए अगर आप कहीं भी देखते होगा कि कोई हलचलें होती है तो कुछ न कुछ बदलाव होना एक स्वाभाविक बात रहेगी।
कहते हैं मुंबई में अगर पोताश्रय में जो है बनिए भाग का जो धंसना और महाबलीपुरम मंदिर का समुद्री जल में होना तथा कच्छ के रण की भूमि की सतह में कुछ परिवर्तन भारत में घटने वाली इन हलचलों के कुछ उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में आप समझ सकते हो कि ये हलचलें का कुछ एग्जाम्पल भी हमारे समक्ष है। यानी अगर मुंबई की हम बात करें जिसमें बनिए भाग का जो है धंस जाना, आखिर क्यों धंसी है? महाबलीपुरम मंदिर का समुद्री में जल में होना, ये भी बात जो है दर्शाती कि पृथ्वी में हलचलें होती है। और कच्छ के रण की भूमि स्तर में हुए परिवर्तन, ये सबसे हलचलें के जो है सबसे अच्छा और सबसे विशिष्ट यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इसकी बाहरी परत में हलचलें सदैव पैदा होती रहती है और इन हलचलों के पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। यानी देखा जाए तो पृथ्वी में सदैव ही हलचल होता रहता है और इन हलचलों के कारण कई जो है क्षेत्र में बदलाव होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये हलचलें पृथ्वी की बाहरी परत की वास्तविक बनावट में हुए परिवर्तन से संबंधित होते हैं या पैदा होती है। अंततः इन्हें जो विवेतनिक हलचलें भी कहते हैं। अगर हम विवेतनिक की बात करें तो हम प्रीव्यू चैप्टर में भी विवेतनिक के बारे में विस्तारपूर्वक जाने थे। कहते हैं टेक्टोनिक शब्द जो है ग्रीक शब्द के टेक्टोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बनने वाला। यानी टेक्टोनिक्स का मतलब ही होता है बनने वाला। यह शब्द अपने में पूर्ण सार्थक है, क्योंकि पृथ्वी की ये हलचलें वास्तव में निर्माणकारी है, क्योंकि इससे बहुत चीज़ों का निर्माण भी होता है तो कुछ चीज़ों का विनाश भी होता है। कहते हैं हिमालय अगर आप देखे होंगे तो अब ये भी हम हिमालय का निर्माण पहले नहीं था, लेकिन अब जो जाके हिमालय का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा ही पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के भू आकृति का निर्माण होता है, जो एक स्वाभाविक बात है। और ये हलचलें अपने जगह पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान भी देते हैं। आगे जो है हम चित्रों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारत का स्वरूप जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व पूरी तरह से भिन्न था और आज यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी और गंगा सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर जो है टैथिस नामक सागर हुआ करता था और टैथिस सागर जो है निकटवर्ती स्थल प्रदेशों से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों के क्रमिक निष्पेषण से भर गया और बाद में थैलिस सागर के तल में बनी जो है सारी शैल से हुए क्रमिक उत्थान से जो है उत्तर में हिमालय तथा उसके दक्षिण में गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय का निर्माण भी इसी बात का सुचालक था कि यहाँ पर जो है 6 करोड़ वर्ष पूर्व देखे तो हिमालय यहाँ पर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका हिमालय का निर्माण हुआ और आज हिमालय जो है सबसे ऊँचे में से गिना जाता है। यहाँ पर जो है 2 चित्र दिखाए गए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पहला चित्र की हम बात करें जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व भारत का, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि भारत जो है गोंडवाना के साथ जुड़ा हुआ है और टैथिस सागर है, अंगारा दिख रहा होगा भारत का प्रभाव। तो ये चित्र भी मानचित्र भी जो था विपरीत है, बहुत ही अलग है, जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व के जो है यहाँ पर मानचित्र है। अगर हम वर्तमान की मानचित्र देखें तो आप देख सकते हो कि हिमालय जो है भारत यहाँ दिख रहा होगा, भारत की जो है टकराव जो भी दिख रहा होगा। तो ये आज के समय में पुराने समय में बहुत जो है विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। भारत के मलावर पठार का जो है दक्कन टेप उत्तरी अमेरिका में जो है कोलंबिया तथा स्नेक नदी के पठार हैं। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है कोलंबरेल्स पठार, दक्षिण अमेरिका में पराना और पेंटागोनिया पठारों का निर्माण भी विभिन्न जो है भूगर्भिक कालों में पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकले पिघले हुए लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। यानी इन सब का निर्माण जो हुआ है लावाओं को जो है ठोस होने के कारण ही संभव है। इन्हें उदाहरण से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का जो धरातल कभी भी ऐसा नहीं रहा होगा जैसा कि वह आज है और यह भविष्य में भी ऐसा रहेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं सभी चीज़ों का बदलने का एक जो है प्राकृतिक का नियम है और ये बदलते ही रहते हैं। यदि बात यहाँ पर हम करें 2 बातों की जो हमने यहाँ पढ़ने से हमें स्पष्ट हुआ है तो वो यही बात हो सकती है कि ये हलचलें जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जातीय बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी के प्रभावित करती है, पृथ्वी की हलचलें कहलाती है। कई बार एग्जाम में आया था कि पृथ्वी की हलचल से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो कि वह हलचलें जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जातीय बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी को प्रभावित करती है उसे हम पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। दूसरी बात उभर के जो यहाँ सामने आया है वो ये आया है कि पृथ्वी की हलचलों को जो है विवर्तनिक हलचलें भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल पर जो है क्रमिक परिवर्तन द्वारा भौतिकीय लक्षणों का निर्माण करती है, जो कि कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है
और ये ज़रूरी भी है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का सहायता करना है। दूसरी बात ये रहेगा, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल सब्सक्राइब करके रख लेने में भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि तभी आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। नहीं तो आप जो होगे कि समय के अनुसार आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाओगे। और आप ये सोचते होगा कि मैं रिसर्च करके ढूंढ लूँगा तो शायद आपको वहाँ पर जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का वीडियो ना मिल के कोई दूसरा ही वीडियो मिलेगा जो पहले ही यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को अच्छा लगता है, देखना चाहते हो, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो मिलेगा जो आपके काम के हैं, जो आपके सिलेबस में है। उसको देखिए, समझिए।